receive his blessings in times to come also. Moving on to the next very important program, that is Jatin ji is around us. Yes, I can see him. So I will request now Rahul Kakkar ji and Amit Desai to please escort Chartered Accountant turned Advocate Jatin Harjai ji from Jaipur, who will be talking about a very important topic of relevance of statements, mobile data, etc., rights of taxpayer and powers of officer, blend of GST and PSA, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, which was previously Indian Evidence Act. I request Rahul ji and Amit ji to felicitate our very distinguished guest Jatin bhai with memento and a photo frame. दुनिया में किरदार रोज बदलते रहते हैं। कल जस्टिस थे, आज लर्नेड एडवोकेट है, और थोड़ी देर बाद हमारे समक्ष स्पीकर के रूप में पेश होंगे। जतिन भाई, यू आर डोनिंग अ लॉट ऑफ रोल्स, but I must share very candidly that the way he gave his opinions yesterday during moot court were really insightful and helpful to the moot court participants, not only to the moot court participants but for lawyers like us who are participating in normal routine trial courts in official courts like Surat, etc. You know, message is that even if it is for GST, there is always a take home for every professional who can pick up such and learnings from everywhere. Jatin bhai, we will straight away hand over the floor to you, and we look forward to very important inputs regarding, mostly it will revolve around electronic evidence, etc. And our audience would be delighted with your content. Jatin bhai, please. Esteemed persons on the dais, off the dais, all starting. A very good morning to all of you. I'm especially delighted and must mention the name of my two learned friends, though many are there. Avinash Podarji, Gaurav bhai, for having me here once again in the STAR program. And sorry to all participants that due to some urgent work, the program needs to be reshuffled. And thank you, Machalji. At the last week of our, we have requested her to take the first session. I'm always pleased to be among you all. I think this one is also. So indeed, I'm sure GST is taking good care of you. Or we can say it vice versa as well. You are taking good care of GST. I think both the phrases are correct. Today we are having, I have been assigned for a very interesting topic, which day in, day out we are facing. Before coming to my topic, I would just first start with my tagline or mantra, I would say. Probably जिन्होंने भी मुझे पहले सुना है, they'll recollect. I always start with one article of the Constitution. So maybe जिन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, या I'm sure सब लोगों ने go through किया हुआ है Article 265. We'll just brush up in less than 1 minute's time. Article 265 of the Constitution of India, एक लाइन का है, but has a very deep meaning. No tax shall be levied or
collected otherwise than by way of authority of law. That's it. Full stop. Please mind, there is a odd distinctive between levy and collected, meaning thereby neither there can be levy nor there can be collection otherwise than by way law provides. There may be a valid levy. आपने पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं दिया डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपने गलत आईटीसी लिया डिपार्टमेंट के हिसाब से, मे बी प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दिया, प्रॉपर मे बी पेनल्टी इंपोजेबल है पर्टिकुलर किसी ऑफेंस के ऊपर विच एलिजिबली द असेसी हैज कमिटेड. Maybe there is a valid imposition, but can there be a collection just by a valid levy of tax, interest or penalty? Answer is no. I am not undermining authority or importance of levy aspect. You all are well aware of that. But I want to underline the importance of the collection aspect. That collection is equally important as the levy is. So जब भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कलेक्शन के लिए कोई भी एक्ट करती है, इट मे बी स्क्रूटनी, इट मे बी ऑडिट, इट मे बी inspection, search seizure, summon, show cause, order, these all have to have in the procedure provided by the law. If there is any departure from the procedure provided in the law, then it's a direct violation of the constitutional mandate, I would say. One must refer Kamal Kumar versus Municipal Council, whereby Honorable Supreme Court has specifically said that if the collection is not in the manner law provides for, then we cannot say that such collection of taxes are as per Article 265. Meaning thereby that's bad. Government cannot take that collection. एक बहुत लाइटर नोट में एक बहुत छोटी सी चीज, इस आर्टिकल को जो मैंने भी लास्ट 1-2 मिनट में डिस्कस किया, उसको रीट्रेट करूंगा. अगर मैं इस आर्टिकल को हम डेली डे इन डे आउट यूज करते हैं, मैं उसका एक एग्जांपल यूज करता हूं जिसमें कि हम सब लोग यूज करते हैं. मान के चलिए एक आपके पास एक क्लाइंट आता है, लेट्स से ही इज सपोज टू मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट इन अ फैक्ट्री. मे बी उसको 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है अपने जेब से. ही इज इंस्टॉलिंग अ फैक्ट्री ऑफ लेट्स से हैविंग कैपेक्स ऑफ 150 करोड़ रुपीस. 50 करोड़ उसको इन्वेस्ट करना है, 100 करोड़ ही इज फंडेड बाय द बैंक. अभी वो आपसे मिलने आता है, अच्छा हम मेरे को 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है. आपने उसकी फाइल देखी, फाइल देखने के बाद कहा अरे आपकी फाइल में तो 20 करोड़ रुपए. यू नो, फाइल देखी का मतलब यू ऑल अंडरस्टैंड ना. बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट में जो आई वुड से सरप्लस और लिक्विड कैश और बैंक बैलेंस जो पड़ा हुआ है, दैट इज अराउंड 20 करोड़ रुपीस. तो आप बाकी के 30 करोड़ कहां से लाओगे? देन योर क्लाइंट और लाला जी सेट कर, सर वो एक कोई और मेरी इनकम थी जो मेरी किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी हुई है 30 करोड़ रुपए. यू कैन यूज दैट. बैंक में है ना, एक नंबर का. आप क्या एडवाइस देने वाले हैं उसको? आप पूछेंगे भाई ये 30 करोड़ रुपए कहां से आया? वी ऑल विल डू दैट, करेक्ट ना? मुझे तो बताया नहीं आपने, क्योंकि नहीं सो एंड सो कोई 2 साल पहले इनकम हुआ था, मे बी आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सम फॉरेन बिड, वहां से मेरे पास पैसा था, एक्सेक्ट व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर सोर्स ही एक्सप्लेन टू यू. अभी आप क्या एडवाइस देने वाले हैं? अच्छा, इनकम टैक्स वाले अभी तक पहुंचे नहीं है आपके पास. अभी क्लाइंट ने आपको बताया कि 30 करोड़ रुपया मेरे पास, मेरी कमाई हुई पैसा 2 साल 3 साल पहले का मेरा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और मे भी मेरे एक्स नोन के बैंक अकाउंट में रखा हुआ है. व्हाट यू विल डू? व्हाट विल यू एडवाइज? I think as a consultant, we all will advise him कि okay, do one thing. पहले नहीं दिया, अभी टैक्स along with interest पे करो, और सीओ मोटो अपनी तरफ से पे कर देते. Whatever compliances are there, income tax में compliance before department detects it. Correct ना? सब लोग यही सलाह देने वाले. इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दो. लेट्स से जो आपको आपके क्लाइंट ने बताया, उसमें वो 2 साल की जगह 12 साल कर देता है. उसने कहा ये 2 साल नहीं, ये सब
साहब सीए साहब 12 साल पहले, वकील साहब 12 साल पहले कमाए थे, वो पैसे बढ़े, आज तक दिखाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। हम सोचते थे टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर। नाउ व्हाट गोना हैपन? आपकी एडवाइस में कुछ चेंज आएगा या वही रहेगी? सर चेंज आएगा वही रहेगी? क्यों चेंज क्यों आया? टाइम बार्ड, करेक्ट। आप सब लोगों ने यही एडवाइस दिया, लेकिन कैन यू टेल मी अ सिंगल प्रोविजन इन इनकम टैक्स लॉ विच सेज कि आप 12 साल पुराना टैक्स नहीं दे सकते? प्लीज माइंड, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम असेसी साइड, नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड। डिपार्टमेंट नहीं ले सकता, दैट्स फाइन। डिपार्टमेंट 148 नहीं दे सकता, दैट्स फाइन। मैं ये एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन। लेवी इज स्टिल देयर, वो आपका 12 साल पहले इनकम था, इनकम टैक्स एक्ट पूरा पढ़िए, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपका इनकम हुआ, आपको टैक्स देना था, लेट हो गया, इंटरेस्ट देना। कहां लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में नहीं देना 12 साल पहले का? द ओनली पॉइंट इज नाउ देयर कैन नॉट बी अ लॉफुल कलेक्शन। That is why all of you are using Article 265 only to advise your client आप देने की जरूरत नहीं। यूज करो फैक्ट्री, 50 करोड़ रुपए लगाओ, 20 करोड़ ये रहा, 30 करोड़ वो वाला, we will prove it कि ये 12 साल से बैंक अकाउंट में पड़ा, 12 साल पहले ही हुआ। करेक्ट ना? सो आपका ऑब्लिगेशन लेवी अभी भी है, बट कलेक्शन नहीं है। सो प्लीज माइंड, I wanted to underscore this, that collection is equally important. This was one of the very, very small example of the collection aspect. Collection must be lawful. One last thing, just before taking up of the issue. Please mind, another one, you may note one of the beautiful judgment, or there are so many judgments out there. The wonderful one is Hukum Chand Shyamlal, para number 18, which says, if certain authorities are required to exercise power in certain manner, then those powers are to be exercised in that manner only, or not at all. All other modes of performance are necessarily forbidden. If done so, that will be fundamental violation of the fundamental principle of natural justice, quote unquote, para 18, Honorable Supreme Court, Hukum Chand Shyamlal. So अगर लॉ में कोई किसी भी तरीके का मैकेनिज्म दिया हुआ है किसी भी चीज का, then it has to be followed, not otherwise. Now let's come to some of the aspects which are being happening day in day out in GST. सर्च होती है, बहुत कॉमनली होती है। सर्च का अगर हम रेशो देखेंगे या नंबर ऑफ सर्च की सिचुएशन देखेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ असेसीज, तो एज ऑफ नाउ, और आई वुड से इन लास्ट 3 to 4 years, जीएसटी में परसेंटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, इफ आई कंपेयर इट विद इनकम टैक्स। कितनी वैलिड सर्च है? टाइम विल टेल। आज की डेट में लुकिंग टू अ पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केसेस वी कैन गिव आवर ओपिनियन, बट कोर्ट्स में टाइम लगेगा अभी इन चीजों को सेटल होने में। देयर आर कपल ऑफ केसेस इन व्हिच कोर्ट्स हैज क्वाइट द सर्च प्रोसीडिंग इन द जीएसटी इटसेल्फ। आरजे ट्रेडिंग, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। सर्च इनिशिएट करने के एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आई विल नॉट go deeper into that because I'm assuming that basic aspects are well aware with everyone कि search क्यों होनी चाहिए। Just because you have suspicion that tax pay नहीं हुआ है, can search happen? Answer is no. Just because authority thinks कि आपने credit गलत दिया, can search happen? Answer is no. Authority thinks आपका classification गलत है, maybe you are paying 5%, 12% instead of what authority thinks, which is 18 or 28%. Can search happen? Answer is no. आपका probably mismatch है क्रेडिट का, can search happen? Answer is no, only and only on this basis. If this is the what the base, no. Search कब हो सकती है? When the proper officer, here the proper officer is senior officer, joint commissioner and above, has reason to believe you all are well aware, income tax में बहुत डिस्कस किया हुआ है, Indian Oil, Manilal, बहुत सारे plethora of judgments are there. So when the proper officer has reason to believe that you have secreted, assessee has secreted, उसने छुपा दिया है, छुपा के रखा हुआ है, क्या चीज?
या तो गुड्स, डॉक्यूमेंट, थिंग्स, बुक्स, ये चीजें उसने छुपा के रखी हुई हैं, देन ओनली सर्च कैन हैपन। एंड सर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्च का ऑब्जेक्टिव पैसा कलेक्ट करना नहीं है, प्लीज माइंड इट। लॉफुल ऑब्जेक्टिव पैसा कलेक्ट करना नहीं है, पैसा कलेक्ट करना ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव है, वी ऑल नो। बट ऑन रिकॉर्ड एज पर लॉ, पैसा कलेक्ट करना, टैक्स कंप्यूट करना, ऑडिट करना, ये सर्च के ऑब्जेक्टिव नहीं है, सर्च का स्कोप बिल्कुल नहीं। ऑफिसर गोज एट फॉर द सर्च, वहां पर जाके वो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने लगते हैं, अच्छा ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी। नो, दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ द सर्च, प्लीज माइंड इट। सर्च का स्कोप है बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, थिंग्स, जो कि एसएससी ने छुपा रखी है, उनको जाके ढूंढना। सर्च को हिंदी में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? छापा। छापा वर्ड यूज होता है जब आप इस हिंदी मीनिंग देखेंगे इस लॉ का। छापा मार रहे, किस लिए? ये चीज छुपा के रखी हुई है, इसको लेके आने के लिए, बात खत्म। छापा मारा है आपके यहां, आपने ये चीज छुपा रखी है, आपके यहां से लेके आएंगे, वापस चले जाएंगे फ्रेंड्स। इससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है सर्च 67(2) की मैं स्पेसिफिकली बात करूं। Why I am saying 67(2) क्योंकि ये मेरे टॉपिक से डायरेक्ट डील कर रहा है, क्योंकि जहां पर हम बात कर रहे हैं मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सीजर 67(2) में परमिसिबल है, किसी भी और प्रोसीडिंग में पॉसिबल नहीं है। टोटल 5 तरीके की प्रोसीडिंग्स है जीएसटी लॉ में एज फार इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड। स्क्रूटनी, नो सीजर पॉसिबल। आपका मोबाइल फोन नहीं ले सकते, आपका लैपटॉप नहीं ले सकते। सम्मान में, नो, देयर इज नो पावर फॉर सच सीजर। ऑडिट, नो, देयर इज नो सच पावर। ऑडिट कर रहे हैं, उनको कुछ गलत भी मिल गया आपके लैपटॉप में, आपका लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, देयर इज नो पावर। इंस्पेक्शन, नो, देयर इज नो पावर ऑफ द सीजर। So please mind, it is only and only 67(2) when there can be a seizure of mobile, laptop or any other thing. अब वो मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, we will discuss it. मोबाइल और लैपटॉप का भी सीजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स उसको वारंट करते हैं, we'll discuss it. But please mind, there is no power at all, there is no jurisdiction to seize any document, anything, any books, any goods in any provision other than 67(2). So first of all, there has to be, अगर सीजर कोई चीज हो रहा है विदाउट सर्च के, इट इज नॉट परमिसिबल। अभी बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। अभी डे इन डे आउट मोबाइल लैपटॉप की हमने बात की, और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? डिपार्टमेंट वाले आते ही सबसे पहला काम सीसीटीवी ऑफ कर दी। आपने नोटिस किया होगा, सीसीटीवी ऑफ करवाते हैं। व्हाई? इज देयर एनी प्रोविजन इन लॉ कि सीसीटीवी को ऑफ किया जाए? आंसर इज नो। आई ऑलवेज एडवाइज कि सीसीटीवी को चालू रखें, बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि जो हैरेसमेंट लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर सीसीटीवी चालू है। प्लीज माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द बोर्ड कि अगर कोई सेंसिटिव केसेस में सर्च हो रही है तो इट इज बेटर टू गेट इट रिकॉर्डेड। कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा ऑफिसर्स की तरफ से कि भाई आप ये सीसीटीवी बंद कर दीजिए, हमारे प्रोटोकॉल में परमिटेड नहीं है, समथिंग लाइक दिस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई लॉ, कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो सीसीटीवी को बंद करने की बात कहे। यू हैव एवरी राइट कि आपका सीसीटीवी चालू रहे जब सर्च की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। दूसरा, फिजिकल अब्यूज, ये भी बहुत देखने को मिलता है जब सर्च हो रही है। क्या ये सब चीजें परमिसिबल हैं? आंसर इज नो। एक और चीज कि मोबाइल और लैपटॉप बहुत बार सीज होते हैं। वो आप भी जानते हैं क्यों सीज होते हैं, मैं भी जानता हूं, एसएससी भी जानता है और ऑफिसर भी जानता है। क्योंकि जितने भी डिस्कशंस होते हैं उनकी एक ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि वो मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप वगैरह में मिलेंगे। तो अगर मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखूं तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये कहता है कि आप
जिन जिन चीजों को सीज कर सकते हो, 4 चीजें, वन ऑफ देम इज थिंग, वन ऑफ देम इज थिंग। अब थिंग क्या होता है? थिंग इज हैविंग वेरी वेरी वास्ट मीनिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वो एनीथिंग या थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यूजफुल होनी चाहिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की, ऐसा रीजन टू बिलीव हो, इस चीज का रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो चीज, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फोन या लैपटॉप की बात कर रहे हैं, उसका रीजन टू बिलीव, ना रीजन टू बिलीव आर वेल अवेयर विद यू कि वो देयर इज अ कॉग्निटिव रीजन कि भाई डिपार्टमेंट के पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि एक्स पार्टी का असेसी के साथ में डिस्कशन हुआ, रेट तय हुआ, एग्रीमेंट हुआ, 2 नंबर का पैसा चैनलाइज हुआ, समथिंग। In these cases, yes, I can say there is an authorization from 67(2) to seize the mobile or a laptop. लेकिन इसका दूसरा फिक्स कर रहे हैं कि आपको पासवर्ड दीजिए, we need to check. When we were discussing कि भाई अगर पासवर्ड दे दोगे तो ऐसा उसमें कुछ है क्या? Because he told me he is not having anything to hide. क्योंकि उसका पूरा बिजनेस 100% एक नंबर है, कोई कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं होता। Even that department was insisting कि आप इसका पासवर्ड दीजिए, assessee was insisting, no, I don't want to give password. Then I asked him, भाई फिर क्या दिक्कत है यार, दे दो, एक दिन में फ्री हो जाएंगे, नहीं तो लंबा चौड़ा हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से आर्गुमेंट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then he told me, sir, there are some personal stuff. अब पर्सनल स्टफ क्या है वो आप सब लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट, उसमें गलत बात क्या है? हर किसी का राइट ऑफ प्राइवेसी है। Similarly, I was handling one of the matter in which a man was there who was moving with his girlfriend, and man was married, so you can understand वो बिजनेस से कितना ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट हो गया। So finally, we took a call. We will not share password. We will not share password. We have intimated department in writing that we are not going to give you password of this because this iPad does not have any data. If you want any information, ask us. We will provide. At the first end, you know what would be the behavior of the department. नहीं होना तो चाहिए। Then we file a petition before the High Court. First, we ask that you first let us know what reason to believe you have recorded to you, not he, rather the additional commissioner who given the authorization. वो reasons तो नहीं मिले, but ये पता चल गया कि उनके पास कोई reason नहीं। And believe me, जिस दिन हमारी first hearing थी, उससे एक दिन पहले डिपार्टमेंट रिलीज द iPad। जिस दिन फर्स्ट हियरिंग हाई कोर्ट में थी, उससे एक दिन पहले डिपार्टमेंट ने रिलीज ऑर्डर दिया उसका iPad का। ओनली एंड ओनली ऑन दिस प्रीमाइसेस कि आपके पास कोई रीजंस रिकॉर्डेड नहीं है और iPad में हमारा कोई ऐसा डेटा नहीं है। इफ यू आर अवेयर कि कौन सा डेटा है, प्लीज लेट अस नो। वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड दिस iPad इज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। Otherwise, also please go with the statutory provisions. 67(2) second provision specifically provides, मैं आपकी ये तो वो केस हुआ जहां पर अभी हमने शेयर नहीं किया। Many a time what happens, वो तो मोबाइल हाथ से ले लेते, हाथ से भी ले लिया, खोल के भी ले लिया, पासवर्ड पूछ भी लिया। सिचुएशन may arise in this manner। अब तो आप उस सिचुएशन में जब आप पासवर्ड दे चुके, मोबाइल फिर भी सीज किया हुआ है, लैपटॉप फिर भी सीज किया हुआ है। प्लीज माइंड स्टैट्यूटरी मैंडेट। स्टैट्यूटरी मैंडेट क्या है? ये स्पेसिफिकली कह रहा है लॉ कि आपको कोई भी थिंग, प्लीज माइंड आई यूज द 4 वर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट, गुड्स और थिंग्स। ये 4 वर्ड लॉ में यूज हुए 67(2) में कि किन किन का सीजर हो सकता है। एंड ऑब्वियसली मोबाइल और लैपटॉप कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थिंग्स। जब वो आपको सीजर मीमो देते हैं INN 02 में, उसमें भी वो थिंग्स की कैटेगरी में लिखते हैं मोबाइल फोन और लैपटॉप। रिगार्डिंग थिंग्स, स्टैट्यूटरी मैंडेट सेकंड प्रोविजन टू 67(2) सेज कि आपको जो थिंग्स है वो आपको रिलीज तब तक ही अपने पास रखनी है जब तक इट इज यूजफुल फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट।
उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते। ये नहीं है कि जब तक शो कॉज नहीं देंगे तब तक अपने पास रखेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें क्या चीज चाहिए वो जब तक हो जाता है तब चैप्टर एंड्स। मोबाइल में अगर आपको अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई चीज चाहिए तो क्या होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको डेटा लेना है, वो डेटा ले लीजिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। सो दिस इज व्हाट इज स्टैट्यूटरी मैंडेट व्हिच आई डिस्कस। I would like to go ahead. This is what we all are probably aware with this. I would like to go a bit further into. थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये स्टैट्यूटरी मैंडेट तो है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, मोबाइल या लैपटॉप एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली सब लोगों का कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा उसमें होता है। पर्सनल डेटा मे बी पर्सनल ऑफिस, मे बी माय बैंक डिटेल्स, मे बी माय कोई रिलेटिव की इंफॉर्मेशन, समथिंग एनीथिंग, सम पर्सनल डेटा इज देयर अनडाउटेबल which I do not want to share with anyone. It's my wish, I do not want to share with them. Here let us refer Article 21 of the Constitution of India, which is very important. जो सैकड़ों सालों की लड़ाई कोशिशों के बाद देश को आजादी मिली, वो आजादी का जो एम्बेडेड है सबसे इंपॉर्टेंट राइट हमारा, वो कहां पर है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सेज कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विद ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अदरवाइज देन बाय वे लॉ प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट, बट जो मेरे टॉपिक जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं उससे रिलेवेंट एस्पेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। Now please mind, आपका कोई डेटा ऐसा है जो you do not want to share with anyone, you want to make it private only. Can department have access to it? Constitutional. यानी कि मैं बात कर रहा हूं राइट टू प्राइवेसी की। क्या राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूजन हो सकता है? आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जब इनिशियली ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ हमारे देश में, खड़क सिंह का केस था, विच इज वेरी फेमस वन, 1964। सुप्रीम कोर्ट सेज राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विच इज एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले भी कही है, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इन केस दे एग्जामिन दिस चैप्टर 3 एंड सेज नो, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दिस इज व्हाट खड़क सिंह केस। इसके बाद में गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट वाज अनदर रिमार्केबल जजमेंट, केम इन 1975। वहां पर फर्स्ट टाइम दे रिकॉग्नाइज कि जो टेलीकम्युनिकेशन डेटा है, आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और मे बी अदरवाइज, आज उस जमाने में फोन ही हो सकता था, nowadays it is SMS, email, everything. This is part of right of privacy. But what they said, since it is not a fundamental right, if there is a larger state interest, in the larger state interest, it has to give it. But convincing state interest has to be there. Then only we can, then the state interest will prevail over the right to privacy. Thereafter we had PUCL versus Union of India in 1996, which has specifically recognized that contains in the telephonic communication which includes messages, are right, or this is a private matter of an individual. Then I am sure 2017 judgment of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, most of us are aware. Honorable Supreme Court, Constitutional Bench, 9 judges Constitutional Bench has declared that right to privacy is a fundamental right in our country, enshrined in Article 21.
जब हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो ये राइट टू लाइफ इज नॉट लाइक अ लिव ओनली, इट्स नॉट लाइक लिव लाइक अ कैटल, इट्स लिव लाइक विद अ ह्यूमन डिग्निटी. That means your privacy rights are enshrined into it, and this is a part of fundamental rights, and no one can breach it until unless it is specifically provided in the law. So meaning thereby, please mind, despite there is a statutory provision to get your document, to get your things back, maybe mobile phone, maybe laptops, but before that, can seizure of the same at all has to be there? Until unless reason to believe are recorded, for specific reason to believe are recorded that you have something, some data secreted into it which is relevant for the GST department, in my humble opinion, there cannot be a seizure of mobile phone or laptop. If you refer this Kutuswamy judgment and correlate it with section 67(2), this is what my conclusion to it. Now coming to the another aspect, now we have another issue of statements, that statements are being recorded. Statements कैसे रिकॉर्ड होते हैं we know, कई बार by force, कई बार ज़्यादातर वही होता है. It is very rare. I'm not like if there screen पर possible है, I just want to display section 70. नहीं हो पा रहा, कोई भी और तो just section 70 display कर दीजिए. That's very important. Maybe whatever time I have, sir कितना time है मेरे पास, I know काफी हो. That's very interesting कि हम सब लोगों को समन बड़े आराम से और बड़े डिपार्टमेंट मोहब्बत से देता रहता है. एक चीज और, जब तक ये स्क्रीन पर 70 समन्स के लिए आता है, मैंने सर्च के रेस्पेक्ट में आपको बात की. सर्च का ऑब्जेक्टिव ही सीजर है. आप देखेंगे सर्च के साथ में और नहीं, सर्च एंड सीजर है लॉ. सर्च के साथ साथ में चलता है सीजर रिलेशन. प्लीज माइंड, सर्च तभी इनिशिएट होनी चाहिए जब प्रॉपर ऑफिसर, कौन जो ऑथराइज कर रहा है, द पर्सन हु इज इशूइंग द सर्च वारंट, उसको ये बिलीव है, जो लॉ में लिखा हुआ वो तो है, उसके अलावा बोल रहा हूं कि आपसे अगर ये इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो आप डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन नहीं दोगे. प्लीज मैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से लेस डिस्कस अमंग अस कि आपको आपके यहां सर्च तभी इनिशिएट होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि ये रीजन टू बिलीव है डिपार्टमेंट के पास, ऑथराइजिंग ऑफिसर के पास, कि आपसे ये डेटा मांगा जा रहा है एंड यू विल नॉट प्रोवाइड टू अस. अभी आप चीजें सोचिए, जब सर्च वारंट बहुत बार देखा, रीजन टू बिलीव बहुत सारे केसेस में लिए, तो उनमें रीजन क्या मिलता है, या सर्च का जो सीजर डिपार्टमेंट करता है वो क्या क्या करता है, आपके GSTR 3B1, अरे भाई ये पोर्टल पर पहले से ही, इसको मुझे देने की जरूरत भी नहीं है, और मांगोगे तो मुझे दोबारा देने में क्या तकलीफ है. बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई हैव फाइल्ड माय रिटर्न्स. Please refer 6710, which specifically refers CRPC for the procedure for search and seizure, which specifically refers 165 CRPC, and 165 CRPC clearly says so कि search तभी conduct करनी है when the concerned officer has reason कि आपसे कोई ये information या data या detail मांगी जाती है which you are not going to provide to the department. This is what you are having the reason to believe this. So you have to incorporate BNS, now CRPC पहले वाला along with it कि भाई वो कब होना है. Now let's come to this fantastic section which is being used on a day in day out. Let's read together. The proper officer under this act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in inquiry in the same manner as provided in the case of a civil court under the provisions of CPC. Each such inquiry referred in subsection 1 shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the IPC. अभी ये 1 से ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप समन देखोगे, जब भी समन रिसीव होते हैं, इसको हाईलाइट जरूर करेंगे. और इन सो मेनी केसेस आई हैव सीन कि जब समन दिया जाता है वो 19 इसको हाईलाइट करते हैं, साथ में इसकी कॉपी भी देते हैं. 193 228 लिख के देंगे, सेक्शन 70 नहीं देंगे,
सेक्शन 70 क्या कहता है, बट दे विल गिव यू अ कॉपी ऑफ सीपीसी का 193/228 और वहां पर क्या once a client came to me, उसको 4 या 5 बार समन इशू हो चुके थे, डिपार्टमेंट ऑफिसर वाज सेइंग ओके भैया तुम सब अंदर जाने वाले हो, इसलिए चोरी के लिए नहीं, टैक्स चोरी के लिए नहीं, बिकॉज यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द समन, आप समन के ऊपर आ गए और उसमें 7 साल की जेल होगी तुम्हें. This was the threatening given to the department. Corresponding provisions are 229 और 267 of the BNS, identical provision. ABCD का भी difference नहीं, comma full stop का भी difference नहीं है, so BNS and CRPC are exactly same on these front at least. I was surprised, मैंने कहा लॉ ऐसा तो नहीं हो कि कोई आदमी जिसने 100 करोड़ की चोरी किया टैक्स का, उसके लिए मैक्सिमम सजा कितना हो सकता है जीएसटी लॉ में? इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना. एंड वो बेचारा मेरे पास क्या क्वेरी लेके आया, सर 7 साल के लिए मेरे को सजा हो जाएगी क्योंकि सम्मन पे नहीं है. मतलब किसी आदमी ने मान के चलो 100 करोड़ का टैक्स चोरी किया, उसको मैक्सिमम 5 साल की सजा, और जो सम्मन पे नहीं किया उसको 7 साल. क्या लॉ ऐसा हो सकता है? सर ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता और है भी नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 193/228 corresponding provision in BNS 229 193 का जो है, what it says कि अगर आपने किसी समन प्रोसीडिंग्स में फॉल्स एविडेंस दिया, प्लीज माइंड इट, ये एब्सेंस की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, फॉल्स एविडेंस दिया, देन इन दैट केस यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड विद एंड सेंटेंस कैन बी normally 3 years, maximum 3 years, but if the proceedings are judicial proceedings, then it can extend till 7 years. So assuming that subsection 1 says it is a judicial proceeding, fine enough. So possibly अगर कोई गलत एविडेंस दिया, false एविडेंस दिया, theoretically yes, there can be a 7 years. अगर गलत एविडेंस दिया तो ना आने के लिए नहीं. Now we'll look at 228. 228 talks about कि आपने ऑफिसर को बीच में इंसल्ट किया या इंटरप्ट किया उसके काम में, तब आपको पनिशमेंट हो सकता है, दैट टू मैक्सिमम 6 मंथ. अब वो 2 साल से नीचे वाले पनिशमेंट केसेस का क्या हाल होता है, वी ऑल. सो सबसे पहले मैं जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं उसका थोड़ा सा डिकोडिंग कर रहा हूं कि ये समझ से कितना डरना चाहिए कितना नहीं. आई लीव ऑन यू, बट वी मस्ट बी अवेयर विद ऑल दीज फैक्ट्स. ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहना चाहिए. एक बार चलो मैं थियोरेटिकली मान भी लेता हूं 7 साल के लिए होने वाला है. इसका क्या होगा, मान के चलिए 3 सम्मन 4 सम्मन 5 सम्मन के ऊपर कोई एसएससी नहीं गया, क्या ऑफिसर एक वारंट इशू कर देगा कि भाई इसको जेल में ले जाओ? कैन ही डू सो? ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू. वो सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट, जीएसटी केस में कितनी इंक्वायरी हो रही है उसी के लिए जुडिशियल ऑफिसर है, उससे ज्यादा नहीं. अभी उसके लिए होने वाला क्या है, लेट अस अज्यूम देयर इज अ वायलेशन ऑफ 193 और 228. नाउ इन दैट केस व्हाट गोना हैपन, द प्रोसीजर वुड बी दैट रिस्पेक्टिव ऑफिसर हैज टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कोर्ट कि भाई मैंने इसको सम्मन दिया था, ये आने लगा, या फिर मैंने सम्मन दिया था, इसने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो प्रोसिक्यूशन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट. अब उसका प्रोसीजर कोर्ट का क्या है, यू आर वेल अवेयर विद आवर इंडियन कोर्ट प्रोसीजर्स. वो पहले उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, पहले उसके एविडेंस होंगे, यानी उस बेचारे ऑफिसर के हो सकता है 2 4 5 10 चक्कर पहले कोर्ट के लगेंगे. किस लिए? आपको कोर्ट से संबंध दिलाने के लिए, केस एडमिट कराने के लिए, आपको संबंध दिलाने के लिए कोर्ट से कि भाई आपने इनके संबंध का जवाब क्यों नहीं दिया. फाइन. जब क्या होने वाला है, जब उस कोर्ट का सम्मन आएगा तब आप क्या करोगे, कोर्ट पे जाएंगे, करेक्ट ना. कोर्ट का सम्मन आया आप जाओगे, कोर्ट पूछेगा आप इनके सम्मन पे क्यों नहीं गए, व्हाट विल बी योर आंसर. जो भी रीजन रहा होगा, उस दिन तबीयत खराब थी, उस दिन तबीयत खराब ही नहीं है, मे बी घर में शादी थी, आई वाज आउट ऑफ टाउन, व्हाटएवर बी द रीजन इज, यू टेल द कोर्ट. कोर्ट क्या कहेगा, ओके आप चले जाओगे, ओके आई विल. आपने देखा आज तक एक भी केस जिसमें कि 70 का कंप्लाइंस नहीं करने की वजह से प्रोसिक्यूशन हो गया.
दिस इज नॉट द रीजन. तो कितना डरना है कितना नहीं डरना है, लीव ऑन यू. अब एक बड़ा मजेदार ये नया क्लॉज आया 1A. तो मैंने 1 के बाद सीधा ये देखा, कुछ देखा कि ये बड़ा मजेदार है. All persons summoned under subsection 1 shall be bound to attend. पहला फ्रेज क्या, जो भी है उनको अटेंड करना है. When this section came, I was thinking कि पहले अटेंड करने की जरूरत नहीं थी क्या? कोई बात, आगे बात. Either in person or by an authorized representative. क्या कहना चाह रहे हैं? पहले authorized representative के थ्रू अटेंड नहीं कर सकते थे क्या? As such officer में डायरेक्ट, मतलब पहले ऑफिसर डायरेक्ट नहीं कर सकता था कि आपको पर्सन और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो आप आओगे या दोनों आ सकते हो. एंड द पर्सन सो अपीयरिंग शैल स्टेट द ट्रुथ. मतलब ये अमेंडमेंट 2024 में आया, इससे पहले आई वाज अलाउड टू स्पीक लाई. इज इट सो? आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं इस सेक्शन को डिकोड करने की कोशिश कर सकूं, बस एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्लॉज क्यों है. मे बी सम प्रीकंसीव्ड नोशन अबाउट द लॉ. First line says all persons summoned under subsection 1 shall be bound to attend. Please mind and remember section 70 जो अभी इस पे ही है. इस summons के ऊपर CPC की provisions लागू होते हैं जब भी section 70 लगा है. Judicial proceeding in section 71 is saying so. And now you refer order 5 or sorry order 9 of CRPC rule 1 which specifically says all the persons are bound to attend. तो इसमें नया क्या कर दिया? पहले भी bound थे, अब भी bound है. Second limb says either in person or an authorized representative. CPC is very much clear on this. Again, order 5 rule 1 says कि आप खुद जा सकते हो जब समन आता है तो, या आप अपने प्लीडर के थ्रू जा सकते हो. देखिए वहां तीन मैकेनिज्म बताया उसमें. कैसे बताया कि आप खुद जा सकते हो, आप अपने प्लीडर मतलब आप एडवोकेट या काउंसिल के थ्रू जा सकते हो, और तीसरा आपके प्लीडर, लेकिन कई बार होता है ना वो वकील साहब को समझ नहीं है डेटा की या पॉइंट की, तो आपका प्लीडर या वकील साहब अलोंग विद योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसको उस पॉइंट की समझ हो, तो ऐसे जा सकते हो. दिस इज व्हाट रूल 1 ऑर्डर 5 CPC says which applies to these proceedings. So इसमें नया बात क्या होगा, या वो सरप्राइज की कई जगह पर मैं सुन रहा था कि पहले संबंध में ऑथराइज्ड या वकील साहब या सीए साहब नहीं जा सकते थे, पहले भी जा सकते थे, कोई मना नहीं. लेकिन अगर संबंध में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको ही आना है, तो पहले भी आपको ही जाना था, आज भी आपको ही जाना. Last limb of this clause, it says, and the person so appearing shall state the truth during examination or making statement or produce the documents. That's a very interesting one. कि भाई सच बोलोगे, सर ले लें आगे से कि ये कि भाई वो कहे कि स्टेटमेंट में गलत दिया था तो भाई आपका ही अमेंडमेंट ही अब आया है लॉ में. लेना है सर ऐसा कोई कि सच बोलना है, ये अमेंडमेंट 2024 में आया, उससे पहले आपने था ही नहीं मैं कभी सच बोल रहे. It was on lighter vein, but in my opinion about this particular aspect of this law is a bit different. And with all due regards, क्या होने वाला फ्यूचर में पता नहीं, but it appears to me that you will find this clause in the teeth of the constitutional provision. I am afraid that it may get declared unconstitutional on some day. Article 20 fundamental rights का part, please mind, it says no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. सर्च होती है और वो कहते हैं ना आप रिकॉर्ड कीजिए या आप बताइए कि ये आया है. अरे भाई आप कह ही नहीं सकते ये वाली. You cannot compel anyone to be witness against himself. You cannot. अच्छा इंटरेस्टिंग मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये आपका राइट है कि आपको कभी भी ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट बोलो. Now you please refer CRPC. What it says 161 सब लोगों को पता है वो 161 164 क्या होता है. 161 जब आप पुलिस के सामने दे रहे हो, 164 जब आप मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हो.
लोग पढ़ोगे, जो कि कुछ पेरीमेटेरिया टाइप की चीज है, which is being brought in light of this constitutional mandate, it specifically says कि आपको जब भी आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको सच बोलना है जो भी आपसे पूछा जाए उसमें, except there is exclusion to it, except जब आप सच बोलने वाले हो, यानी जब आप आंसर कर रहे हो और आप सच बोल रहे हो, सच बोलते हुए आंसर कर रहे हो, आपको लगता है कि आप खुद फंस जाओगे उसका आंसर देने से, then you have every right to remain silent. Please read verses. So the constitutional stream is always this one, कि आपको आपके अगेंस्ट बयान देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। एविडेंस लॉ सेक्शन 25, BSS BSA कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन 23 आइडेंटिकल। अच्छा, एक क्लॉज ऐड हो गया उसमें। एविडेंस में क्या लिखा हुआ है? एविडेंस मेरे मुंह से वो रिपीट में वही निकलेगा, व्हेन आई एम रेफरिंग एविडेंस दैट मींस आई एम रेफरिंग टू BSA। थोड़ा मुश्किल है बोलने में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। BSA is good. BSA and section 25, this is a perimeter of clause 1, which says जब पुलिस को आपने स्टेटमेंट दी, तो that statement shall not be treated as proof. वो उस स्टेटमेंट की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। ये सबको पता है, मूवी से दिखा दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये BSA जो नया आया है, एविडेंस से एक एक्स्ट्रा लिखा है उसमें एक क्लॉज, एक सबसेक्शन 2 डाल दिया गया। उसमें क्या लिख दिया गया है? जब आप पुलिस की कस्टडी में हो तो आपने कुछ भी कभी भी बयान दिया है, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं। ये पहले नहीं था, एविडेंस में नहीं था। दिस इज एन एडिशन टू इट। एक तो ये हो रहा है कि जब आप सर्च के दौरान दे रहे हैं, एक ये हो रहा है आप पुलिस की कस्टडी में भी हो तब भी किसी भी हालत में कोई बयान एडमिसिबल नहीं, until unless it is in front of the magistrate. अभी यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, and I am expecting the judgment from Honorable Supreme Court can come very soon, maximum within 2 months. Maximum within 2 months I am telling you, maybe 3 दिन में आ जाए। एक देखिए बड़ा मजेदार चीज मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ। We all are aware that we are having 3 organs of our governance: legislative, executive and judiciary. Correct na? Article 50 is there in the constitution which says that state shall make all the endeavors कि इन दोनों organs, ये जो executive और judiciary है, इनमें overlapping और separate है, independent है। ठीक है? तो आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे पुलिस का एक फंक्शन है, पुलिस कभी सजा नहीं दे सकती, ये इन्वेस्टिगेशन वाला कभी सजा नहीं। वो क्या करते हैं? अपना इन्वेस्टिगेशन करके दे प्रोड्यूस द चालान और देयर रिपोर्ट इन द कोर्ट, चार्जशीट देते हैं। देन द कोर्ट जुडिशरी डिसाइड्स कि क्या ये जो किया वो सही किया है गलत किया। यानी इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द कोर्ट, वो सेपरेट है, अलग अलग प्रोसीडिंग्स है। अभी यहाँ एक अच्छा, एक मैंने आपको जो सॉरी आई जस्ट टेक इट बैक, जो मैंने अभी तक कुछ चीजें डिस्कस की थी वो आ रही थी आपके एविडेंस लॉ से, लेकिन एक्साइज में आइडेंटिकल प्रोविजंस थे। एक्साइज में आइडेंटिकल प्रोविजंस है एज रिगार्ड समन, कि भाई समन जब आप कर रहे हो दीज आर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, ये जो समन्स में जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये पुलिस के रिकॉर्ड किए हुए समन है या जुडिशियल ऑफिसर के रिकॉर्ड किए हुए समन है? जुडिशियल 70 आपके सामने, 70 आपके सामने, 70 आपके सामने। बट द प्रॉब्लम है, अच्छा ये चीज ऑलरेडी काफी आगे तक गया हुआ है मैटर, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर डिसाइड कर चुका है। कस्टम्स एंड एक्साइज के केसेस में ओम प्रकाश वाज द लीडिंग जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि जो एक्साइज ऑफिसर्स हैं ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसलिए सेक्शन 25 नहीं लगी। प्लीज फॉलो मी, दैट्स इंपॉर्टेंट। Maybe it appears that what I stated is contrary to it. Section 25 evidence will not apply to the excise or for the proceedings undertaken by the excise officers
फाइन, क्यों? क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसीलिए जो उनको लॉ में प्रॉपर दिया, दैट्स फाइन, कि भाई उनके जो स्टेटमेंट उनके सामने लिए दे आर एडमिसिबल एज एन एविडेंस, फेयर एनफ। उसका जब आप पूरा जजमेंट पढ़ोगे देन यू विल कम टू इट कि द रेशियो एंड रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो पुराने रेजिम में थी उसमें पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसका सेंस ये था कि उनको खुद को अरेस्ट की पावर नहीं। अब जीएसटी लॉ में क्या हो रहा है? यहां पर अरेस्ट की पावर है, यहां पर अरेस्ट की पावर है ऑफिसर्स के पास, करेक्ट है ना? So now situation is a bit different. Situation is different as compared to the earlier law कि यहां पर जीएसटी ऑफिसर्स के पास ही अरेस्ट की पावर है। So precisely what happens कि आप जब सर्च किसी क्या हो रही है, सर्च के टाइम पर सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वगैरह देखे जा रहे हैं, उसको एक बार को तो वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरीके से चेक कर रहे हैं, पुलिस की तरीके से चेक कर रहे हैं। प्लीज माइंड 67 की पावर एक्सरसाइज होती है, 67 से सीआरपीसी अप्लाई होगा, सीआरपीसी मतलब पुलिस वाली बात कर रहे हैं कि पुलिस लगेगा। साइमल्टेनियसली जो एक प्रैक्टिस आ गई है अभी लॉ में, देखिए यहां लॉ में लगता है कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, बट लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड और अब्यूज्ड। क्या जीएसटी ऑफिसर जो सर्च पर जा रहा है उसके पास पावर है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है? 67(2) आपके सामने डिस्कस किया हमने, उसमें कोई पावर है? नो। पावर है कि आप जाइए सर्च कीजिए क्या डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स, बुक्स, गुड्स और सीज करके ले चेक प्राइम्स। दिस इज व्हाट द स्कोप ऑफ सर्च अंडर जीएसटी लॉ। प्लीज कंपेयर इट विद इनकम टैक्स। 132 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो सर्च के लिए जा रहा है, दे कैन रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट ऑन ओथ ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग। दिस काइंड ऑफ प्रोविजन इज नॉट देयर अंडर द जीएसटी लॉ। ये प्रोविजन जीएसटी लॉ में नहीं है कि जब आप सर्च पर जा रहे हो तो आप उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे। तो होता क्या है, दे आर यूजिंग पावर्स ऑफ 70 ड्यूरिंग द सर्च इटसेल्फ। आप देख रहे होंगे सर्च के दौरान संबंध दे देते हैं। कैसे संबंध देते हैं कि स्पॉट संबंध, उसमें लिखते हैं कि भाई आओ यहीं के यही स्टेटमेंट दो, मैं आपके यहाँ सर्च पे आया हूं और सर्च के वहां भी आपके ऑफिस में, आपका जो ऑफिस है वही मेरा कैंप ऑफिस हो गया, यहीं पर आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, करेक्ट ना? सो प्रिसाइजली इट अपीयर्स देयर इज अ ग्रेट अब्यूज ऑफ द पावर्स। एक तरफ आप पुलिस पावर which is 67 पावर, 62 पावर्स आर देयर, सर्च एंड सीजर की एक्सरसाइज कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो जुडिशियल ऑफिसर की which is in violation of आर्टिकल 50। Can it be permissible? In my humble opinion, this is not. This aspect has constitutional validity has already been challenged in the Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has heard this issue at great length in the month of May. In the month of May 2024, they heard this and the order is reserved. And the larger bench heard that this issue. Why I said within 2 months this judgment should come, because उसके बाद वो जज साहब का रिटायरमेंट है. So I'm expecting कि that judgment should come and let us see कि उसमें कितना इस चीज के ऊपर क्लैरिटी आती है उसके बाद. बट प्राइमा फेसाई दिस एस्पेक्ट जो समन्स के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑन स्पॉट, इन माय हम्बल ओपिनियन दे आर एब्सोल्युटली अब्यूज ऑफ द पावर्स, बिकॉज एक तरफ आप पुलिसिंग पावर यूज कर रहे हो, दूसरी तरफ जुडिशरी पावर यूज कर रहे हो साइमल्टेनियसली, व्हिच इज क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 50. नंबर 1. नंबर 2, आप देखिए जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ सर्च इटसेल्फ, तो जब सर्च के टाइम में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आपको समन में क्या लिखते हैं? समन में लिखते हैं आइए आप मुझे, समन इशू हो रहा है 2 बजे, 3 बजे मुझे बुलाया. समन क्या इशू हो रहा है कि आपको 2 बजे समन इशू हो रहा है, 3 बजे मुझे बुलाया जा रहा है. इज इट फाइन? डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द 70 itself I would say. 70 जब आप समन दे रहे हो, इट इज गाइडेड बाय सीपीसी. सीपीसी ऑर्डर 5 रूल 6 क्लियरली से आप एक डेट फिक्स करोगे, आप एक डेट फिक्स करोगे किस दिन सामने वाले को आपके पास आना है, एंड यू विल गिव अ रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर हिम. अब रीजनेबल टाइम 2 मिनट होगा, 2 घंटे होंगे या 2 दिन होगा, आई डोंट नो क्यों बेटा. बट सर्टेनली एट द टाइम ऑफ सर्च नो वन कैन से द पर्सन हु इज बीइंग सर्च्ड इज इन अ पीस ऑफ माइंड. सो वो चाहे सर्च 2 दिन चल रही है, 1 दिन चल रही है, 1 घंटा चल रही है, I cannot say that I was in a peace of mind. चाहे वो 1 घंटे का टाइम है, चाहे 1 मिनट का टाइम है, चाहे 5 दिन का टाइम है, अगर सर्च चल रही है तो in my humble opinion
It's not a reasonable time, चाहे वो जितना मर्जी टाइम हो. The assessee has every right to refuse to in giving of a statement. You can educate your client कि भाई आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आपने सम्मत दिया है, I am not in a peace of mind, I don't want to give a statement at this point of time. You have every right to do this. Rule 6, Order 5, CPC, please refer that. Next point. अभी अच्छा हाँ, just I recollected because जो point था उसके साथ ही what happened in not only one cases, there are a couple of cases with us. ये जो DIN है ना, DIN नंबर, ये बड़े काम की चीज है. डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी है सबके ऊपर लगाना, सही है ना सर? चलो वी हैव मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस, लेकिन चलो एक बार सेंटर मान लेते हैं. सेंटर वालों के लिए, सेंटर वालों के लिए जरूरी है. जब ये शुरुआत में सर्कुलर आया था अक्टूबर में, देन नवंबर में सारे कम्युनिकेशंस के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया, तो स्टार्टिंग में वी हैव ऑब्जर्व कि कई जगह पर ये फॉलो नहीं हुआ था. इट्स फाइन, नया नया चीज सीखने समझने में टाइम लगता है ऑफिस को भी. फिर उसके बाद देखा कि सबके ऊपर डिन आता है, करेक्ट ना? अब आज की डेट में सबके ऊपर DIN आता है. तो मे भी शायद आप लोगों के साथ भी वही हुआ होगा जो हमारे साथ हुआ, मेरे ऑफिस में हुआ कि भाई शुरुआत में तो सबका एक वो जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है ना, ये चीजें चेक करनी है, तो उसमें से डिन चेक होता था. तो उसके बाद डिन को भूल गए लोग, अब तो सब में आता ही. आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज स्टिल चेक DIN. जब आप DIN चेक करेंगे, मेरे साथ कई इंसिडेंसेस हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं. ये जो मैं आपको बता रहा हूं तो मल्टीपल टाइम्स हुआ. सर्च के लिए क्लाइंट आपके पास आता है, सर्च के बाद वो लेके आता, सब उस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, हमारा एडमिशन भी करा लिया, ये और वो हमने हमसे सब कुछ लिखा लिया, ये सिर्फ बिल लिए थे, माल नहीं आया था, समथिंग समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप उस संबंध का डिन चेक करिए. मेरे ऑफिस में मैंने चेक करवाया. व्हाट हैपेंड, सर्च का जो पंचनामा है, उस पंचनामा में क्या लिखा हुआ है कि सर्च स्टार्टेड एट मॉर्निंग 9:30, कंक्लूडेड एट लेट्स से इवनिंग 10:30. ठीक. समन के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको ये समन अंडर सेक्शन 70 में इशू कर रहा हूं, एंड यू आर सपोज टू अपीयर बिफोर मी एट माय कैंप ऑफिस एट 3 PM. जिस दिन सर्च हो रही है उसी दिन का समन है, वही डेट डली हुई है उसके ऊपर. मुझे 3 बजे बुलाया जाता है. जब डिन चेक करते हैं तो प्लीज माइंड, और उसके ऊपर डिन डला हुआ है, समन के ऊपर डिन डला हुआ है जो समन मुझे दिया. तो जब डिन चेक किया तो पता लगा वो डिन कब का है, रात को 11:30. आप मुझे कब बुला रहे हो? 3 बजे. बेचारे की नौकरी खतरे में है. आप असेसी को एक टेबल में ऊपर नीचे क्या डाल दिया किसी ने, उसको आप सप्रेशन बोल रहे हो, ये क्या है? दिस इज फ्रॉड बाय द ऑफिसर. कि आप स्टेटमेंट आपने पहले रिकॉर्ड किया, समन इशू किया बाद में, और उसमें टाइम पहले का लिख रहे. यानी समन जब दिन छपा हुआ आपके हिसाब से मेरे पास डॉक्यूमेंट 3 बजे से पहले आया. दिस इज व्हाट द केस ऑफ द डिपार्टमेंट. और आपका ही सिस्टम ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो दिन छपा हुआ है वो 11:30 बजे जनरेट हुआ है. हाउ कम इट इज पॉसिबल? सो प्लीज, ये बहुत कॉमन चीज हमारे नोटिस में आई है, विच आई एम शेयरिंग इट विद यू. प्लीज always check your DIN कि किस टाइम इशू हुआ है, and it is getting corroborated with your पंचनामा or not. एक बार तो ऐसा भी हुआ हमारे सामने, DIN जो आया, it was a matter of chance कि वो सेम DIN 2 क्लाइंट के अलग अलग उसके ऊपर आ गया हमारे पास. एक चंडीगढ़ का था, एक वन वाज फ्रॉम गुजरात, और वो सेम DIN यूज हो रहा. हमने जाके चेक किया तो वो एक ही ऑफिसर का बता रहा है, इस ऑफिसर ने लगा. यानी कि वो कई बार बाई चांस DIN जनरेट करना भूल गए. कई बार होता है ना आपके ऑफिस में भी, आर्टिकल कुछ करने से रह गया, जूनियर ने कुछ गलत कर दिया तो वो ओवरलैपिंग करके इधर उधर कॉपी पेस्ट मार दिया बात. सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपेंड बाय द ऑफिसर कि अच्छा वो DIN जनरेट करना भूल गए, डॉक्यूमेंट ऐसे भेज दिया, तो उसके बाद उठा के DIN बाद में जनरेट, वो किसी और का DIN उसके ऊपर चिपका दिया. दिस हैज हैपेंड. सो DIN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. नेक्स्ट विल कम ऑन दिस. लेट्स से सर्च के दौरान तो आप वहां थे नहीं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए. स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होते हैं? थप्पड़ मार के होते हैं, पिटाई से होते हैं, खाली डरा धमका के हो जाते हैं, या प्यार मोहब्बत से होते हैं. ये केस टू केस डिपेंड करेगा.
फैक्ट्स क्या है केस के, वो आप देखेंगे जब केस सामने आएगा। बट केस लेट्स से सामने आता है और आपको ये कहा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है आपने, ये जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं, इसके हिसाब से ये चीज, मतलब लेट्स से स्टेटमेंट, वो क्लासिक केस ले लेते हैं कि भाई असेसी हिमसेल्फ एडमिटेड कि भाई ये मैंने खाली बिल लिए थे, घूस नहीं आया था, लेट अस सी दिस इज व्हाट रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट। अब आपके पास टैक्स पेयर आपके पास आता है आफ्टर सर्च, व्हाट टू डू? फर्स्ट एस्पेक्ट इज better to retract them as soon as possible. Better to retract them. When I use the term as soon as possible, इसकी कोई definition नहीं है। इसकी कोई definition नहीं है कि आपको immediately retract करना, कोई कानून नहीं है इसके ऊपर कि 5 दिन के अंदर कर देना, 2 दिन के अंदर कर देना, ऐसा कुछ नहीं। This was your statement was recorded. You have to say कि आपके जो मैंने दिया था that was not free will. अब वो fact के ऊपर depend करेगा आप उसको कितना explain करना चाह रहे हैं, कितना नहीं। But I would suggest one thing: always do it on an affidavit. Always do it on an affidavit. Affidavit carries a different weightage because अगर डिपार्टमेंट ने उसको क्रॉस नहीं किया then that becomes final. नेक्स्ट चीज देते हैं, मान के चलते हैं कि क्लाइंट आपके पास 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आता है सर्च के, क्या अभी रिट्रैक्शन करना चाहिए? I would say normally no. Normally no. Until unless you have some different kind of circumstances, like in one of the cases what happened, जिस दिन सर्च हुआ उसके अगले दिन मेरे क्लाइंट का एक्सीडेंट हो गया, उसका ये लेग में फ्रैक्चर आ गया, so he was admitted for 1 month in the hospital. फ्रैक्चर आ गया, कुछ और भी जो भी इशू हुआ, but he was admitted for 1 month in a hospital. So in these type of circumstances, yes, you can retract at a later point of time, not a problem. But if you are retracting unnecessary at a very late point of time, 2 months, 3 months, 4 months after later, that will not serve the desired purpose. Then it is better to wait for your show cause notice if it comes. Because जब भी show cause notice आने वाला है, you are going to get a copy of the statement which has been recorded at the time of search or maybe thereafter, if the same is being relied upon by the department. अगर ऐसी कोई situation है, then in that case, it is always suggested to ask for the cross examination. Now once again, when we offer for a cross examination, we will not find anywhere in the GST law that there is a somewhat cross examination होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, etc. etc. आपको GST Act में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। और again, you will have to refer common law, evidence law, section 137, 138, 139 are the relevant one. In the BNS 142, 143, so not BNS, BSA. In BSA you will find 142, 143, 144. Identical, कोई comma full stop कोई change नहीं है, same है. So what has been explained there is कि the mandate is कि कभी भी कोई भी statements अगर rely हो रहे हैं, तो जो precisely जो original statement rely हो रहे हैं, those statements are technically called as examination in chief. Technically that is called as examination in chief. अगर examination in chief हो चुका है, यानी कि वो statement record हो चुके हैं, then the other party has a right to cross-examine. अब यहाँ पर बड़ा important है, I'll discuss another point with it, but let's complete this first. So the other party is taxpayer. Let us say कोई statement record हुए आपके जिस दिन search हुआ और maybe thereafter even कि भाई general manager of the company has said कि भाई ये हम लोगों के let's say general manager से एक statement record हुआ कि हमारे यहाँ बुक्स में जो भी डेटा है उसमें एक जीरो कम है। गुजरात वाले नो मैटर ना, अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग कंपनी में एक जीरो कम है, किसी के यहाँ 50% है, किसी के यहाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अलग अलग। लेट अस अज्यूम ऐसा कुछ रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जनरल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी. Now you are supposed to ask for the cross examination. 138 says कि आपका जो प्रोसेस है that would be प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? किसी भी एविडेंस को, दिस इज एन एविडेंस जो स्टेटमेंट डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है, लेट्स से जनरल मैनेजर के स्टेटमेंट हुए, डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ केस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर केस बन रहा है तो इस स्टेटमेंट को प्रॉपर एविडेंस बनने में, इसके ऊपर रिलाई करने में, इसका प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद में देयर हैज टू बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन.
क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी बाय अदर पार्टी, सेकंड पार्टी. यहाँ सेकंड पार्टी कौन है? टैक्स पेयर. Then if need arise, there will be re-examination by the original party. And please mind, re-examination का जो purpose है, जो objective है, that stated objective है कि जो original statement थे, उस statement में क्या वो किसी pressure में हुए हैं, क्या वो गलत दिए हैं, उनको disprove करना, उनको गलत prove करना. So don't afraid. अभी मतलब maybe last month only हम लोगों ने एक केस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया, उसमें बाकायदा रिकॉर्ड में यही नोट किया कि बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन करते टाइम ये नोट किया कि एक्स ऑफिसर ने मेरे से प्रेशर में गाली देके थप्पड़ मार के मेरे से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया. दिस वाज रिकॉर्डेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आई मस्ट टेल यू कि शोकस विथड्रॉ हुआ इसी मंथ की बात है, ये दिसंबर 2024. गुजरात में नहीं देते क्रॉस एग्जामिनेशन. सॉरी, गुजरात में क्रॉस एग्जामिनेशन आपसे इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. आप एक बार मान लीजिए, पीछे मत पड़िए. बस बस, वेरी गुड. आप कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन देते नहीं है, यू आर वेरी राइट. 90% केसेस में नहीं देते, ऑफिसर यही करेंगे. बट आई एम टेलिंग यू कि एक बार मान के छोड़ दीजिए, बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज सेटल्ड ऑन दिस कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा और ऑफिसर ने नहीं दिया, देन दैट एविडेंस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. दैट एविडेंस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. मैं आपको एक 2023 का एग्जांपल देता हूं, बड़ा बेहतर एग्जांपल है. सी, जो हम बात कर रहे हैं बीएस से एविडेंस या जो भी सीआरपीसी की बात करें, सीपीसी की बात, these are जनरल लॉज. जहां पर भी आपको मेन लॉ में, स्पेसिफिक लॉ में कोई चीज स्पेसिफिकली नहीं मिलेगी, देन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दीज हैज टू बी फॉलोड. व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन वन ऑफ द पीएमएलए केसेस. पीएमएलए का नाम सुनते ही सब लोग थोड़ा सा वो ईडी हाथ में आ जाती है. 5 मिनट्स, ओके, देखिए टाइम का आ गया. तो ईडी ने एक केस बनाया सेक्शन 8 का पीएमएलए, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस, इमीडिएटली आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस फॉर एडजुडिकेशन ऑफ कन्फिस्केशन, काउंसिल आस्क्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स relied upon. The officer said no, adjudicating on that, no, this cross examination is not required because he himself admitted something, and this request for the cross examination has been made with the objective of delaying adjudication. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एडजुडिकेशन डिले हो जाए. क्यों? उसका रीजन है, जीएसटी में असेसमेंट करने का क्या टाइम है? 74 में 5 साल. अच्छा, अब तो नया 74 ये आ गया, उसको सबके लिए 5 साल हो गया. डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4.5 साल प्लस 6 महीना, सबके लिए 5 साल हो गया, चाहे वो बोनाफाइड है नॉन बोनाफाइड है. वहां पर टाइम लिमिट है 180 डेज, टोटल 6 महीने. ठीक है. सो व्हाट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिड इज, you know, no cross examination because the objective of the cross examination is to delay the adjudication. Matter went before the Honorable Delhi High Court. Delhi High Court said, बेशक इसमें लिमिटेड टाइम फ्रेम है एडजुडिकेशन के लिए, then also cross examination is part of the principles of natural justice and the cross examination proceeding cannot be said to be alien in the adjudication proceedings under the PML. बेशक कम से कम टाइम दिया हुआ है, even then cross examination is mandatory. Dr. U.S. Awasthi versus adjudicating authority PMLA. This is 2023 case of the by the Honorable Delhi High Court. So that's what the importance of the cross examination. Sales tax tribunal versus Kala Glue Factory versus sales tax tribunal. Honorable Supreme Court ने सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर पूरा केस क्वेश्चन कर दिया कि डिपार्टमेंट ने जिस आदमी का क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं किया था, केस बनाया किसके? स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर, और स्टेटमेंट में जिसके रिलाई किए थे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड नहीं किया, और जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वो आदमी ऊपर पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट से पहले कराया नहीं अलाउ, अब हो नहीं सकता. चैप्टर एंड्स, केस गोस. सो दैट इज व्हाई आई सेड टू यू सर, आपने मांगा, उन्होंने नहीं दिया. मैरिट्स पे आपके केस के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते जाते 25, 30, 40 साल लग जाएंगे. आपकी अगली जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन जब तक उस केस को हैंडल करेगी तब तक होपफुली वो भी चला जाएगा. तो so many things are there. So yes sir, I'll take this 1 or 2 minutes. Last point जो एक मेरे दिमाग में था, मैं नोट किए 1-2 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा. एक और बड़ी कॉमन चीज जो देखने में आ रहा है, सर देखो एक्सटेंशन कंडोनेशन मिल गया मुझे 5.
सी बहुत बार ऐसा होता है, आप देखेंगे, लेट अस से डिपार्टमेंट केम फॉर अ सर्च। जब वो सर्च के लिए आपके पास आए, most of them they will be having some information, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, they will be having some information। या फिर स्टेट वाले कर रहे हैं तो वो वैसे भी आ जाते हैं घूमते फिरते। But when DGI is doing search or maybe enforcement anti-division is doing search, they will be having some information with them कि ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ ज्यादा किया हुआ है, ऐसा लग रहा है, रीजन टू बिलीव है या नहीं, बट रीजन टू सस्पेक्ट जरूर होना चाहिए, नहीं कह रहा, होगा क्या। So now उनके दिमाग में था कि ये असेसी का एक्स लिमिटेड के साथ में कोई ऑफ द रिकॉर्ड एग्रीमेंट हो रखा है जिसमें कि एक्चुअल बात लिखी हुई है, वो 1-0 हटाने की जगह एक्चुअल चीज लिखी हुई है। They went at the factory, they went at the residence। ना फैक्ट्री पर ऐसा कोई कागज मिला ना रेजिडेंस पे मिला, लेकिन रेजिडेंस पे जब वो जो पानी पिला रहा था पियोन, उसको जब 1-2 लगाए तो उसने बताया सर सेठ जी डेली शाम को एक वो बसंत विहार में एक कोई फ्लैट है वहां जाके आते हैं। नहीं, मैं उस कंसर्न पर नहीं जाता, मैं बिजनेस करेगा। आप तो सोच रहे वो भी हो सकता है, बट पियोन सेड सो, जो ऑफिस में जो घर का सर्वेंट था, ही टोल्ड कि भाई वो जो सेठ जी फैक्ट्री से आते वक्त एक बसंत विहार में एक फ्लैट लिया हुआ, वहां जरूर जाता है। फिर करा, अब ऑफिसर क्या करेगा, ये कागज तो वहां, भाई आप भी ऑफिसर होगे तो आपको क्या लगेगा, कागज तो वहां पर है ना। जिन्होंने भी ये केसेस सिचुएशन हैंडल किए, फैक्ट्स हैंडल किए, यू एग्री विद मी, इमीडिएटली डिपार्टमेंट ऑफिसर टेक दैट सर्वेंट की चल जीप से मेरे साथ में चलो, वहां पर जाके देख के आते हैं। This is called as penalty made search in technical terms. Please mind, GST law doesn't have any provision for penalty made search. Please mind. GST law has only and only one provision for search, which is 16(2). और 16(2) में जो सर्च वारंट इशू होगा, that will be for very specific premises। और वो सर्च वारंट किसको इशू करना है, प्रॉपर ऑफिसर who cannot be less than the designation of joint commissioner। Let's say additional commissioner को वो फंक्शन असाइन है आपके स्टेट में, in that case that additional, अच्छा सर्च पे कौन आया हुआ है, सुप्रिटेंडेंट साहब, इंस्पेक्टर आया, मैक्सिमम से मैक्सिमम असिस्टेंट कमिश्नर। देखिए आप कभी सीनियर ऑफिसर सर्च पे नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, एडजुडिकेशन तो हमेशा सीनियर वाला करता है ना। अरे सर्च में कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा, सर्च का स्कोप क्या है, आप जाओ ये चीज ढूंढो, मिल जाए तो लेके आ जाओ, दिस इज व्हाट द स्कोप, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है सर्च का। इसीलिए उसमें कोई सीनियर ऑफिसर नॉर्मली नहीं जाते, जो प्रोटोकॉल बने हुए इसमें नहीं जाते सीनियर ऑफिसर, क्योंकि वहां पर कोई एडजुडिकेशन थोड़ी करना है, ये थोड़ी देखना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, जो एक्चुअली करते हैं वो लोग, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर मान के चलो, करेक्ट वे आउट क्या है, अगर मान के चलो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को ऐसा पता लगता है कि देयर इज अ सेकंड प्रीमाइसेस और थर्ड प्रीमाइसेस और फोर्थ प्रीमाइसेस, जहां पर जो हम चीज ढूंढ रहे थे वो पड़ा हुआ है, देन दे हैव टू कलेक्ट मटेरियल, दे हैव टू excuse me, send this report to the proper officer who is the additional commissioner as we discussed, then he is supposed to issue the another search warrant. This is what the correct procedure to be followed for initiating the second search. Please mind and correlate it with the income tax provision, whereby penalty made search provisions are provided if there is a reason to suspect. Please mind my words, not reason to believe. अगर reason to believe first search के लिए, but वहां पर कोई corroborating चीज मिलती है, then on the basis of reason to suspect, income tax officer can go to the another premises, but not the GST officer, as this type of provision is not there. अगर प्लॉट नंबर 311 के लिए सर्च वारंट इश्यू हुआ है, तो वो 312 में या 313 में या 310 में नहीं जा सकते। It will be a clear violation of your privacy, Article 21 का clear violation होगा। So that these aspects which we should be careful. Last एक चीज बस, हाँ सर कंक्लूड, एक चीज जो दिमाग में और लाते थे, क्या हो रहा है, पहले जब वैट रिजीम में सर्चेज वर मेनली ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस,
इनकम टैक्स वाले एक साथ सब जगह, करेक्ट ना सर? वैट वाले कहा जाते थे बिजनेस में, वैट वाला घर आते हुए नहीं देखा ना सर, नहीं देखा था ना? इनकम टैक्स वाले घर तो पहले जाते, उठाते ही नॉक करके। अभी जीएसटी रिजिम में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं। सो द प्रॉब्लम है कि जहां पर उनको रीजन टू बिलीव है कि यहां पर ये डॉक्यूमेंट बुक्स गुड्स और थिंग्स हो सकते हैं, वहां वो जा सकते हैं, तो दैट मींस रेजिडेंस पर जा सकते हैं। बट द प्रोटोकॉल इज अगर रेजिडेंस पर जा रहे हैं तो वन लेडी ऑफिसर हैज टू बी देयर। प्लीज सी इफ इट वाज देयर और नॉट। Many a time we have observed against the guidelines, the searches has been initiated at the residential premises. I think so many things are there. I have already exceeded my given time, so I will conclude my session. Thank you very much, Avinash bhai, for giving me this opportunity so that I came here and shared some of my thoughts with you. Thank you for a very, very patient hearing. Queries are there. I am here if the chair permits. Thank you very much. एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट सर। काफ़ी समय से हमारे साथ हैं भी और लंच के दौरान भी रहेंगे, तो हम निश्चित तौर पर प्रश्न पूछ सकेंगे। देयर माइट बी सर्टेन क्वेश्चंस, स्पेशली जो लोग सर्च सीजर्स वगैरह में डील करते हैं, उनके क्लाइंट्स के मैटर्स को हैंडल करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें पता होने पर उसको यदि हम समय से रिकॉर्ड करवा लेते हैं तो आगे जब एडजुडिकेशन होता है तो निश्चित तौर पर हमारे केस को स्ट्रेंथ मिलती है। सो आई अंडरस्टैंड दैट वी आर हियर सिंस 10 o'clock and it is already 1 o'clock, so some people might be trying to get themselves fresh, and but still we have to move on. And thank you very much Jatin bhai for an excellent session about search and seizures and importance of how we should ensure that the statements are recorded properly, and many aspects of overlap between the GST Act and the common laws like CRPC and especially Indian Evidence Act, now called as BSA. Thank you very much Jatin bhai. Thank you.